Congratulations. Thank you so much. And you've done exactly what दुनिया करना चाह रही थी 2 साल से. गोवा चले गए आप और गोवा में जाके हम इस बारे में आराम से बात करेंगे. नहीं, but this is the beauty of it, you know, going back and forth, coming out like this. I was reading somewhere how you were planning a comeback, for an actor to choose the perfect role. I've seen bits and pieces of it, हम सबको भी दिखाएंगे. So congratulations on that. This is a lovely avatar of yours. I feel 99% of actors ऐसे टाइप का शो करना चाहते हैं जहाँ पर आप एक मैसेज डिलीवर कर सको जो स्ट्रॉन्ग हो, जो आज के टाइम में रेजोनेट करता हो. Correct. तो काफ़ी एक्टर्स आई थिंक बिलीव करेंगे कि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, and I feel that I'm very lucky to get this seriously. So when this comes across and you've got the producer who's as calm as that on stage. She's damn calm. She is? Yeah, I know. But from the inside I could make out that obviously they're trying to do something that is, it's not easy to pull off. And the channel has to do full backing. As an actor, when you're saying, "Arey yaar, ye to realistic hai bada." So were you surprised? Yes, to be very honest, I think सब कोशिश तो करते ही हैं अपनी तरफ से कि हम इस जोन में घुसे या रियलिस्टिक जोन में घुसे, नेचुरल जोन में घुसे, बट काफ़ी हद तक घुस नहीं पाते हैं बिकॉज चैनल की बैकिंग नहीं होती है या फिर हम डगमगा जाते हैं रास्ते में, इवन फॉर दैट मैटर प्रोड्यूसर्स ऑल्सो. बट सो फार वी हैव शॉट सो मेनी एपिसोड्स. It's the same strong message which we've been shooting, and it is commendable how the story is still going on the way it is written and it's been conceived. So it's great that way. That's the biggest victory. नहीं तो 8 एपिसोड के बाद सब कुछ चेंज हो जाता था. अरे एक एपिसोड आई थिंक आउटडोर के बाद सब चेंज हो जाता है. True, very true. But it's looking great, and you know the reason why we're doing this also, and it's a very different format to also launch a show. दो बहुत बड़े personalities आ जाएंगे. I'm super honored to be part of this. Well, I'll be sitting right here and I have all you eminent ladies sitting right there. I'm going to call the entire panel and we'll have a lovely discussion because I think the awareness and the openness and the understanding, at least जो शुरुआत हुई है, ऐसे ही कुछ ladies से हुई है. So I'm going to call them on stage, but one by one, Nilanjana, I'd like to call you back on stage, please. Since you've been the pioneer of this and you've taken the biggest step. I'm sure we can do better than that, at least the cast members in the front. Aditi, right here, Nilanjana, after that, please, we could just take a seat there. I will also call on stage two ladies who I think we've been following for a very long time. Now, when I talk about Tiska, I must mention this. This story I haven't repeated too often, but I remember so many would have come and told you this. Somebody extremely close to me was sitting right here, and I was watching Tare Zameen Par. And when we were watching it, I was bawling because exactly that was that person sitting right next to me. And we spent an entire lifetime, her family, my family, just misunderstanding so many things. And the way you all played those emotions, it was so beautifully done. We saw you as the power of the performer on stage is not about how they come out, or on screen, or how they sort of assert themselves. You've been an author, a performer, just so wonderful. It's so, well, I'm so honored to have you on as part of this panel. But I will say this to you, that lady now is my wife, and that's how I realized Tare Zameen Par changed my life as well. So, that entire team will always be very close to me because exactly that is in my household as well. Tiska, I'd like to call you on stage. And what do I say about the next lady? We do radio, we try and speak publicly. You try and have this conviction that you have कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही होना चाहिए. And then you have a lady that comes in there with those steely eyes. Award-winning journalist हैं, but हमारी आवाज़ बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग ही इतने confused रहते हैं. We don't know what age we are anymore living on social media. हम सबको लगता है we're all 16 and 18 and 40 at the same time. She's been able to cut across boundaries. She is the voice of reason, the voice of logic, and the voice of the people. And I have to say this, great honor. Faye, thank you so much for joining us on this. I cannot say enough to say that how much every time you speak, it always resonates for us over here. And we're all going, yes, it's not a cricket match, and we're looking at you and just doing the same thing. So big round of applause for Faye D'Souza. Right, ladies, thank you so much for joining us.
And Faye, I'm going to start with you. It is, do you have that steely resolve every time? Aj, I must reach the conclusion of this, because it's almost like we're willing you on. I think we'll wrap that up. We're going to have individuals and one-on-ones later. But for now, on the dais, thank you very much. Thank you, Faye. Thank you, Tiska, Nilanjana, and Aditi. Thank you. Yeah. देखिए ये कैरेक्टर मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करता हूँ और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मैं इससे बहुत रिलेट करता हूँ, बिकॉज ये कैरेक्टर की एक जर्नी रही है और हर इंसान को ऐसा नहीं है कि हर इंसान ग्रो करता है लाइफ के साथ साथ, तो ये कैरेक्टर ने भी ग्रो किया है। ये कैरेक्टर जिस बैकग्राउंड से आता है बेसिकली वो बहुत ही कंजर्वेटिव बैकग्राउंड था, जहाँ पे आदमी लोग जितने भी हैं वो सब बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फैमिली में, वो लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। बट फैमिली में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जिससे आप शादी करोगे जो घर में लड़की आएगी वो भी एजुकेटेड होनी चाहिए, लेकिन काम करने की ज़रूरत नहीं, वी आर इनफ बेसिकली। तो उस बैकग्राउंड से ये कैरेक्टर आता है। इसको दीपिका से मिलने के बाद डेफिनेटली लगता है कि नहीं, मैं अपने फैमिली से मैं थोड़ा अलग हूँ, आई विल चेंज देम। तो वो दीपिका को बोलता है कि तुम काम करो, मैं तुम्हें काम करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसा मैं कहूँ लाइक वो काम कर लो, मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ज़्यादा मत करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो ये वो थॉट प्रोसेस से आता है, जहाँ पे अभी जो एक क्लिप भी दिखाई थी जहाँ पे उसको बोलता है कि तुम्हें किसी पंडित ने बोला है क्या, तो उस सीन में काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है उनके बीच में। आर्ग्यूमेंट भी नहीं बोलूँगा, वो उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो तुम पैथोलॉजी में कर लो MBBS, सर्जन मत बनो, क्योंकि सर्जन बनोगे तो फिर हम दोनों टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली बच्चे तुम्हें ही करने।
तो ये सब थॉट प्रोसेस, तो जब बहुत उन दोनों के बीच में बातचीत डिस्कशन होती है, देन लास्ट में एक चीज़ बोलता है कि तुम्हारी सब बात सच है, लेकिन असली ज़िंदगी और सपने में संतुलन तो बनाना पड़ेगा। तो वो जो मार्जिन है ना, जहाँ पे आप अल्टीमेटली ये कह रहे हो कि असली ज़िंदगी तो समझ लो कि क्या है, तो ये वो थॉट प्रोसेस वाला इंसान है जो जिस वजह से उसको बहुत कुछ लाइफ में झेलना पड़ता है, जो कि बाद में उसको बहुत ऑब्वियसली दीपिका उसको छोड़कर चली जाती है, एंड वो फिर रियलाइज़ करता है कि मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से आज मेरे साथ ही हो रहा है। देन ही चेंजेस ऑल्सो, बट कितना चेंज हो पाता है, क्या 100% चेंज हो पाता है या 99.99 पे रुक जाता है, वो ये इस कैरेक्टर की जर्नी है। सो मैं रिलेट करता हूँ उससे बहुत जगह पर, लेकिन बहुत जगह पे रिलेट ऑब्वियसली नहीं भी करता, बिकॉज ही इज़ टू ईगोइस्टिक एंड आई एम नॉट दैट। देखो कॉम्प्रोमाइज़ वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि नाउ आई एम ऑल्सो मैरिड, तो ये मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैरिड टू शीना, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि औरत को ही गृहस्थी संभालनी है, ये सब चीज़ें करनी है। सो एक इंसिडेंट था जहाँ पे वी वर प्लानिंग टू हैव अ फैमिली एंड दिस एंड दैट, तो शी वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट थॉट। सो आई वॉज लाइक आई कुड फील हर पेन दैट शी ओनली have to go through all of this, and तो वो मैंने उसको बोला था कि आई एम genuinely telling you, if I could have been pregnant मैं बनता, I would not, तुम्हारे को अलाउ नहीं करता that you go through that pain and everything. So ये चीज़ बेसिकली होती है। I forgot your question, like what did you ask? Like still men सोचते हैं कि women को व्रत संभालने के लिए they have to compromise big sacrifice or small, they have to. सच्चाई तो देखो ये है, मतलब हमको लगता है कि हम 99.99% भी बदल गए, जो मैंने आपको भी सपने वाली बात बताई कि हमको लगता है हम लीनियंट हो गए, हम चेंज हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो थॉट रह जाता है, जो कि शायद ऐसे शोज़ के बाद निकले लोगों के, क्योंकि मैं आज अभी से 1 घंटे पहले जो इंसान था वो शायद मैं अभी नहीं हूँ, और ये शो मुझे हर दिन उस थॉट को बदल रहा है, तो वो थॉट मुझे लगता है वो चेंजेस सब में आएंगे, तो इसीलिए ये शो बना है बेसिकली। रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यू हैव सच अ ब्यूटीफुल वाइफ Thank you. शीना, सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट हर, क्योंकि शादी के बाद वो भी इतना ज़्यादा ड्यू टू कोविड बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे हुई कि शी डिडंट क्लेम हर कमबैक और एनीथिंग। सो क्या कहना चाहोगे इस चीज़ को लेकर, कोई कॉम्प्रोमाइजेस जो आपको देखने में आए हो, डेलिबरेटली हुआ हो या फिर अनकॉन्शियसली हुआ हो, कॉम्प्रोमाइज़ किया हो अपने देखो कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं नहीं बोलूँगा, और ऐसा उसके ऊपर कोई फोर्स तो नहीं है। शादी के बाद ही कोविड आया, कोविड के बाद शी हैड टू गो थ्रू अ मेजर सर्जरी ऑल्सो, वो सब चीज़ें तो चलो एक तरफ है, बट मुझे लगता है लोगों का परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लोगों को लगता है दैट विल नॉट बी फ्री विद अ मैरिड गर्ल वर्किंग ऑन अ सेट, ओके इट्स बेटर कि किसी और ऐसी को कास्ट कर लो जो फ्री है, ये मुझे ऐसा फील होता है सेट पे काम करते हुए कि कुछ लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है, बट या ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ये सब थॉट प्रोसेस हो सकता है, उसको कुछ है नहीं, बट इट टेक्स टाइम, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, और शी इज़ वर्किंग सिंस सो मेनी ईयर्स नाउ, तो जब टाइम सही होता है और सारी चीज़ें होती तो आई थिंक शी विल बी बैक। शो 6 दिसंबर को आ रहा है सोनी पर, रात को 10 बजे से रात को 11 बजे तक, और जैसा कि आपने ऑडियंस के लिए मैसेज यही है कि आप लोगों ने हमेशा से प्यार किया है, हमेशा आप लोग इंतज़ार करते हो, क्योंकि मैं हर शो के बाद और थोड़ा ब्रेक हो ही जाता, बिकॉज आई कैन नॉट डू रेगुलर ड्रामा, वो मुझसे नहीं होता, और आई एम रियली थैंकफुल कि ये शो अब आ रहा है, और इसके साथ देखते हैं जर्नी कहाँ पर जाती है। सो डू वॉच द शो, सबको भी बताइए, ये शो में आपको ऐसा नहीं लगेगा देखने के बाद कि आपने टाइम पास किया। एंटरटेनमेंट तो मैं इसको नहीं बोलूँगा कि आप एंटरटेन होंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको वर्थ लगेगा अपना टाइम देना, और कुछ ना कुछ आपका समझ आपकी बढ़ेगी इस शो को देखने के बाद, और एक परसेप्शन चेंज होगा, और जिसकी वजह से आप लोग भी लोगों को बताकर परसेप्शन चेंज कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं शो से। वेलकम।